Hello everyone, I Renu Verma is here again to help you in your preparation for TGT English and PGT English. So here in this video, I have taken some important grammatical errors that will help you in your preparation. So let's get started. First question, which one has a transitive verb? Means you have to identify in the four sentences which one is carry transitive verb. He was looking at me. Don't interfere in the quarrel. He has gone to Patna. He treated her badly. So here are four sentences and four verbs as well. So you have to find out which one is transitive. So students, as you all know that a transitive verb always carry direct object with it. Simple way, जब भी हम verb के बाद में कोई भी pronoun या noun देखते हैं, so means we have to understand that this is a transitive verb. So let's check. He was looking at me, intransitive verb. Don't interfere in the quarrel, intransitive verb. He has gone to Patna, again intransitive verb. He treated her badly. So here the verb treated is transitive verb. So which one is correct answer? Answer number 4. Explanation. A transitive verb is one that can have one object. ठीक है, एक ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती है जिसके साथ में एक ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है, डायरेक्टली वो उसको इफेक्ट कर रहा होता है. ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट वर्ब इनकम्प्लीट फील होती है. दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस. मीन्स आपको करेक्ट सेंटेंस देखना है ग्रामेटिकली. Alms is given to the beggar. Alms is given to the beggars. Alms are given to the beggars. None of these. So just find out alms is given to the beggar, alms is given to the beggars, and alms are given to the beggars. Alms, ALMS, alms means भीख. ठीक है, ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है भीख, और ये सिंगुलर वर्ड है और सिंगुलर वर्ब के साथ में यूज होगा. ठीक है, ये लगता है सीम्स होता है इट्स प्लूरल बट सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद इट. ठीक है, सो विच वन इज करेक्ट? Alms is given to the beggars means second one is correct answer. Explanation. Alms is always used in the plural form and take a singular verb. ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं बट स्टिल दे आर फॉलोड बाय singular verb. I hope this is clear. So alms is given to the beggars is the correct sentence. Next one. His courage won him honor. The word honor is adjective, adverb, noun or verb. Means here you have to identify which part of a speech is the word honor. So the honor word is noun. It is an abstract noun. The word honor is an abstract noun. ठीक है, the words that describes emotions, feelings, that are called abstract nouns. I hope this is clear to you. Next one. Which one is the correct sentence? Tom, I, and you ate sweets. I, you, and Tom ate sweets. I, Tom, and you ate sweets. You, Tom, and I ate sweets. So here we have three persons. First person, second persons, and third persons. आपको ये देखना है कि हमें इनका सीक्वेंस कैसे रखना है. पहले फर्स्ट पर्सन रखना है, सेकंड रखना है या थर्ड रखना है. सो व्हाट इज द करेक्ट वे फ्रेंड्स? पहले हम सबसे पहले
सेकेंड पर्सन यूज करते हैं, मतलब जो हमारे सामने खड़ा है हम सबसे पहले उसे यूज करते हैं, यू। देन वी यूज थर्ड पर्सन, फिर हम जब थर्ड पर्सन होता है उसे यूज करते हैं जो हमारे सामने नहीं है, ठीक है। एंड देन वी यूज फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो द करेक्ट सीक्वेंस इज यू, टॉम एंड आई एट स्वीट्स, ठीक है। फर्स्ट सीक्वेंस आप नोट कर लीजिए, सेकेंड पर्सन, then third person, and then first person. This is the sequence. Explanation: the use of first, second and third person pronouns always follows the order of second, third and then first. ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, दे विल रियली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. Which one is correct? Here you have to identify the grammatically correct sentence. First is, he said that earth was round. He said that earth is round. He said that earth has been round. None of these. So here, whenever we convert a direct sentence into indirect speech, what we do, we simply do, if the principal clause is in past, so then we convert subordinate clause also in past, ठीक है. But here we will not make any changes. Why? Because if there is universal truth, अगर universal truth हो तो we are not going to make the changes. Suppose मैंने कहा कि he said and then inverted comma earth is round, inverted comma close, ठीक है. तो इसमें जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम इसको इज ही रहने देंगे, इसको वॉज में नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. अर्थ राउंड है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है. सो द सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर. ही सेड दैट अर्थ इज राउंड. एक्सप्लेनेशन: दो द वर्ब ऑफ प्रिंसिपल क्लोज. प्रिंसिपल क्लोज क्या है यहाँ पर? ही सेड. दिस इज द प्रिंसिपल क्लोज, और जो उसकी वर्ब है वो पास्ट है, ठीक है. बट इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, लेकिन उसके बाद क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना. एंड यूनिवर्सल ट्रूथ इन द सबॉर्डिनेट क्लोज, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है सबॉर्डिनेट क्लोज है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना. सो दिस विल ऑल्सो बी इन प्रेजेंट टेंस. तो ये प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, इसमें हम चेंज नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ. देखो यूजुअली हम क्या करते हैं, यूजुअली हम ये करते हैं कि जब हमारा प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में होता है तो हम सबऑर्डिनेट क्लोज को भी पास्ट में चेंज कर देते हैं. बट जहाँ पर फैक्ट्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, हम उन्हें प्रेजेंट में ही रहने देते हैं, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वन, चेंज द नरेशन. अब आपको नरेशन चेंज करनी है. You say I cut the finger. This is the direct. This sentence is in direct speech. और आपको इसको indirect में change करना है और आपको options मिल रहे हैं. You say that you cut the finger. You said that you had cut the finger. You say that you cut the finger. Answer number 1 is correct. You say that you cut the finger. How? When the subject of reporting clause is you. जब भी रिपोर्टिंग क्लोज का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, एंड दैट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज आई. सो आई इज यूज्ड इनटू यू, ठीक है. देखो अगर मैंने बोला यू से कि तुमने कहा था कि तुम तो ये खाते हो, है ना, तो तुम ही आएगा ना, है ना. सो आई तो नहीं आएगा ना. आई का मतलब ये कि मैं तुमने कहा था मैं ये खाता हूँ, तो अगर हम डायरेक्ट में आए हैं तो उसको हम यू में कन्वर्ट कर देंगे. मीन्स इफ देयर इज यू इन रिपोर्टिंग क्लोज. रिपोर्टिंग क्लोज क्या है यहाँ पर? यू से, है ना. रिपोर्टिंग क्लोज क्या है यहाँ पर? यू से. अगर रिपोर्टिंग क्लोज में प्रोनाउन यू है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में क्या करेंगे? आई को यू में कन्वर्ट कर देंगे. दिस इज द रूल. आई होप दिस इज क्लियर. Which sentence is correct? Again, you have to identify correct sentence. The news of the train accident are shocking. The news of the train accident is shocking. The news of the train accident is shocking. None of these. ठीक है. Which sentence is correct? अब आपको correct sentence identify करना है.
ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट आर शॉकिंग, द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग, द न्यू ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग, ठीक है। सो बेटा जो न्यूज़ वर्ड्स है, ये जो न्यूज़ वर्ड है, दिस इज द वर्ड, एक्चुअल वर्ड, ये हम किसी का प्लूरल नहीं बना रहे हैं, ये एक एक्चुअल वर्ड है। न्यूज़ को हम न्यूज़ की फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। तो कई बार क्या होता है, हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल होगा, नहीं। न्यूज़ एक एक्चुअल वर्ड है जिसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर 2। द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, न्यूज़ इज सिंगुलर नाउन एंड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। न्यूज़ क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ में हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु आर विक्ड, ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु इज विक्ड, ही इज वन ऑफ दोज बॉय हु इज विक्ड, ही इज वन ऑफ दोज हु आर विक्ड। आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। विच वन इज करेक्ट? आंसर नंबर 1, ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु आर विक्ड, ठीक है। ये उनमें से एक है जो नॉटी है, उनमें से एक है ये लड़का, ठीक है। सो देयर इज बॉयज अ प्लूरल बिफोर, सो द वर्ब आफ्टर इट विल ऑल्सो बी प्लूरल, है ना। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये उनमें से एक लड़का है, कौन किस में से है एक लड़का, जो लड़के विक्ड हैं, तो यहाँ पर बॉयज है, सो बॉयज के अकॉर्डिंग हम आर फिट करेंगे यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। अब आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंसेस, दे हैव नॉट स्टैम्प द लेटर, उन्होंने लेटर को स्टैम्प नहीं किया है, द लेटर इज नॉट स्टैम्प्ड, दे स्टैम्प नॉट द लेटर, the letter has not been stamped, the letter has been stamped. Here are 4 options. You have to choose which one is correct passive voice of they have not stamped the letter. चलिए बनाते हैं। First of all, we will take the letter, ठीक है। Then have not है, तो क्या हो जाएगा, has not been, ठीक है, has not been, and then third form. So option number 3rd is correct. Explanation, with has or have, been is used. सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्टिव फॉर्म में अगर हैज़ और हैव है, तो वाइल चेंजिंग द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, जब भी हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, हम हैज़ और हैव के साथ में बीन लगा देते हैं, एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो दे स्टैम्प्ड नोट द लेटर, इनकरेक्ट, द लेटर इज नॉट स्टैम्प्ड, इनकरेक्ट, द लेटर हैज नॉट बीन स्टैम्प्ड, हैज हैव और हैड के साथ में हम बीन लगा देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वन, this also you have to change in passive voice. We can't repair this lock. Options, we don't know how to repair this lock, nobody can repair the lock, your lock can be repaired, your lock cannot be repaired. अब देखिए, जितने भी मोडाल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, इन सेंटेंसेस को हम जब पैसिव में चेंज करते हैं तो इनके साथ में हम बी लगा देते हैं, बी ई बी है, एंड इन थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो वी कांट रिपेयर दिस लॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक दिस लॉक, कैन नॉट, एंड अकॉर्डिंग टू रूल हम बीन लगा देंगे, कैन नॉट बी repaired, and then we use verb third, है ना। So the correct answer is fourth one, your lock cannot be repaired, ठीक है, या फिर this lock cannot be repaired, ठीक है। I hope this is clear. Explanation, whenever we convert a sentence into passive voice,
that carries can, we convert can into can be and then verb third. ठीक है, can के बाद can भी कर दो, could के बाद could भी कर दो, may के बाद may भी कर दो. ठीक है, दिस द रूल. जितने भी मोडाल्स होते हैं उनके बाद में हम be लगा के verb third कर देते हैं. ठीक है, and then the sentence is complete. I hope this is clear.